So now we are going to discuss the geometrical probability. So first of geometric probability, first of through the word of this, like geometry means probability रिगार्डिंग ज्योमेट्री मीन्स आपको यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल फिगर दिया हुआ रहेगा ओके, और आपको वहाँ से प्रोबेबिलिटी का थ्योरी को इम्पोज करना है और वहाँ से उसको कैलकुलेशन करना है, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। मीन्स प्रोबेबिलिटी इम्पोज इन ज्योमेट्रिकल फिगर मीन्स probability describe imposed in geometrical figure ओके। तो यहाँ पे आप समझेंगे क्या कि जब भी इसका हम लोग प्रॉपर्टी निकालेंगे तो वहाँ पे कोई पैरामीटर जरूर लेंगे, ठीक है। जैसे कोई अगर फिगर हम लोग लिख देते हैं तो अगर फिगर का ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी अगर निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे जो होगा क्या निकलेगा, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी उसका ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका डिजायर्ड एरिया बाय टोटल एरिया, ठीक है। ये आपका निकलेगा जब ये पार्ट, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि सपोज एक हम लोग लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टी लेते हैं। सपोज ये जैसे ये आपका ए, ये आपका क्या है पी है और ये आपका क्या है बी है, ठीक है। तो टोटल जो ये आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ व्हाट ए पी। तो यहाँ से आपको क्या होगा, टोटल लेंथ कितना आपका, टोटल लेंथ जो है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका टोटल लेंथ कितना आपका 3 प्लस क्या आपका 5 मीन्स क्या होगा आपका 8। इसका मतलब ये क्या होगा आपका एन ऑफ एस होगा। सो यहाँ पे एन ऑफ पी मीन्स ए पी, लेंथ ऑफ ए पी, ये क्या होगा आपका लेंथ ऑफ ए पी। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा 3। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा वो क्या होगा एन ऑफ पी एंड एन ऑफ एस। सो वी कैन राइट हियर 3/8 ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज here is the square and the side of the square is 9 centimeter. The side of the square is 9 centimeter and this is the one circle, or you can see this is the black circle, and next we can take another circle, that is blue circles, okay, that is the blue circle. So this is the blue circle. So we need to find the probability of blue circle and blue circle and what black circle. So suppose the radius of this means radius of blue circle is radius is what 5 centimeter and here the radius of black circle equal to what 3 centimeter, okay. So how to find the probability? So first of all you can see, so area of square, so we can write here what side square. So side square is 9 का square means what 81. And now the area of, suppose is 81, next area of black circle, so we can write here pi r square, so means 22/7 into r. We can take here r equal to 2 and here is the r equal to 3. So 2 into 2 means we can write here 2 2s are 4 means 88/7 centimeter square. And the area of next blue circle, so we can write here what pi r square, so means 22/7 into 5 into 5, okay. 25 into 20, sorry here we can take here 3 ना, so यहाँ पे 3 करेंगे हम लोग 3, तो 3 3 जा 9, ओके। हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग के पास 3 3 जा 9, so we can write here 9 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 19 means, so probability of black circle, ठीक है, probability of black circle. So we can write here what area of black area of
black divided by area of square. Okay, area of square. So we can write here area of black is what? Right here, what is the value of area of black? Means 88 by 7. So we can write here 88 by 7 whole divided by what? Divided by the area of square is what? 81. So we can write here what? 88 by 7 into 81. So we can write here 88 by 7 and 8 7 by 56. This is the answer. So probability of what? Blue circle. So we can write here what? Probability of blue circle means we can write here pi r square. So area of blue divided by area of blue divided by area of square. Area of blue circle and area of square. So area of blue circle is what? You can see 198 by 7. 198 by 7 into square means 81. So okay, so we can write here 198 by 7 1 is 7 and 8 7 is 56. This is the answer. Okay, so next we can solve some questions regarding this. Suppose question number 3. Suppose this is the square. This is the square. This is the square and this is the circle. So okay, this is the circle. The side of square is what? The side of square is 4 centimeter and the radius of circle is what? 2 centimeter. Okay, so we need to find area of probability of circle. So we can write here what? Area of square means we can write here NS means 4 का square means 60 and area of circle which pi r square means 22 by 7 into 2 into 2. So we can write here probability equals to P equal to what? N of P by N of S. So we can write here what? 4 2s are 8. 4 2s are 8. 4 2s are 8 by what? 7 into 16. So 8 by 112. So this is the answer. So now we can find some area of area. Okay, आपको यहाँ पे कुछ एरिया आपको ये फॉर्मूला आपको देते हैं, आपको कुछ यहाँ पे इसको बनाना आपको यहाँ पे देखें. यहाँ पे सपोज ये जो है आपका ये कितना आपका 15 सेंटीमीटर है. ये आपको अलग अलग सर्कल दिया हुआ आपका, ये आपको अलग अलग सर्कल दिया हुआ है. इसको आप अलग अलग इसकी प्रॉपर्टी निकालेंगे. ठीक है, इसकी मान लेते हैं ये इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस जो ये 1 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये आपका क्या है 3 सेंटीमीटर है. सो सारे का इसमें प्रॉपर्टी निकालेंगे. ठीक है, ये और ये इसकी प्रॉपर्टी निकालेंगे. नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपका जो है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है. यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है. ठीक है, ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ आपका, और ये ट्रायंगल जो दिया हुआ कितना है, ये ट्रायंगल दिया ये आपका है 8 और ये आपका 6. तो इसका हम लोग का एरिया फाइंड करना है. ठीक है, इसका एरिया क्या होगा. नेक्स्ट नंबर थर्ड में आपका जो है नंबर थर्ड में ये आपका दिया हुआ है, ये सर्कल है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है. ठीक है, इसका प्रॉबिलिटी निकालना है. ये वाला पार्ट को आपको प्रॉबिलिटी निकालना है, जो सर्टेड पार्ट है उसकी प्रॉबिलिटी को आपको निकालना है. ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे ये वाला पार्ट का निकालना है प्रॉबिलिटी. ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है आपका. क्वाड्रेंट की आपकी प्रॉबिलिटी निकालना आपको कितना होगा, ये हम लोग के पास 10 सेंटीमीटर है. ठीक है, नेक्स्ट आपका 5th नंबर जो है ये हो गया आपका. नेक्स्ट आपका ये सर्कल है. ठीक है, ये आपका जो है ये आपका 14 सेंटीमीटर है, ये आपका 16 सेंटीमीटर है. ट्रायंगल है, ये आपका जो है 12 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये आपका स्मॉल ट्रायंगल है.
ये आपका है क्या 4 है, 5 है और ये क्या 6। तो ये वाला पार्ट का आपको क्या करना है, एरिया को निकालना है। सॉरी एरिया नहीं पाए, इसका प्रॉबिलिटी, जितने भी सैडेड पार्ट है सारा आपको प्रॉबिलिटी को निकालना है आपको। नंबर 6 जो है आपका, नंबर 6 में देखेंगे आप ये, ठीक है, ये आपका नंबर 6 में आपका ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये सर्कल है, इसकी प्रॉब्लम को निकालना है, इसका एरिया, ठीक है, सॉरी इसका प्रॉबिलिटी निकालना है आपको। ये आपका कितना है, आपका 12 सेंटीमीटर, ये आपका 14 सेंटीमीटर और ये आपका 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका इसमें वैल्यू को निकालना है आपको। और इस तरह करके आपका सारा कैलकुलेशन करेंगे, उसको कैलकुलेशन करके आप देखेंगे कि इसका ज्योमेट्री का प्रॉबिलिटी इसका क्या हो जाएगा। ये आपका 7 हो गया। 8 देखें इसका, 8 में आपका देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये आपका सर्कल है, ये भी एक आपका सर्कल है, तो ये पार्ट का आपको एरिया प्रॉबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। ये पार्ट को आपको प्रॉबिलिटी फाइंड करना है। यहाँ से ये वैल्यू आपको दिया हुआ, ये वैल्यू आपका क्या है 3 है और ये वैल्यू आपका कितना है, रेड क्या इतना 5 सेंटीमीटर। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक आपका 5 है, तो ये वाला वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसका प्रॉबिलिटी आपको फाइंड करना है कि क्या प्रॉबिलिटी होगा। ये आपका हो गया 8 नंबर देखें आप, 8 नंबर में आपका ये क्या है, ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका स्क्वायर कितना है 10 सेंटीमीटर है, सारा 10 है, ठीक है। अगर एक रेक्टेंगल है आपका, रेक्टेंगल का जो है आपका, ये आपका एक रेक्टेंगल का आपका 5 है और ये आपका क्या 4 है, तो इसका आपको प्रॉबिलिटी निकालना है। इस तरह करके आप सारा ज्योमेट्रिकल प्रॉबिलिटी इसका निकालेंगे तो आपका इसका आंसर निकल जाएगा।